about today glucose homeostasis, everything including majority of the biochemistry as well as the physiology of it. Now, all of the concepts I'm gonna carry it here, and it's gonna be from all of the concepts from first aid, all of the concepts from Chatterjee, Harper, Lippin, every source I've tried to find it out, and all of the possible online sources I've tried my hard to actually put it here. So what is actually homeostasis? Homeo actually means to put something into a similar state, and stasis actually means that एक constant phase में हमारी एक चीज़ चल रही हो, ठीक है? That means कि first of all, before moving forward, what is the normal range of our glucose? In our body, glucose की अगर normal range की बात करें, always remember कि उसके अब depend करता है कि आप glucose test कब कर रहे हैं. For example, if I am testing the glucose in the fasting state, एक test होता है, that is जब हम 8 to 10 hours तक, for example, if you had a dinner at 8 p.m. and tomorrow morning at 8 or at 6 a.m. you are actually gonna go for without eating anything, only drinking water, you are actually gonna have some kind of test blood glucose का. So that is a fasting state के बाद 12 hours के बाद आपने एक test करवाया, that is known as a fasting blood glucose level. वो value जो हमारे पास होती है normally, that's normally according to American. अब देखें with time UK guidelines and American guidelines diabetes की, hypertension की get changes. So according to me, you guys have to put it every time you actually watch any kind of videos like these, you have to put up with yourself, not with the books, but not with the latest editions even, but with the latest guidelines online. ठीक है, American Association की है किसी की भी. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम 70 to 100 मिलीग्राम पर DL. अब कहीं कहीं इट्स 99 भी, इट्स ओके. अब 100 दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए मैकेनिज्म कि हम चाहे खाना खाएं या ना खाएं, द बॉडी ग्लूकोज लेवल शुड ऑलवेज बी बिटवीन द 70 to 100. क्यों? What is the reason? This is such a narrow limit, and why we have to maintain the narrow limit? Our body will do anything in this world to actually put up with the normal blood glucose level that is 70 to 100 के बीच में. Why? Because whatever the reason our body is facing, are we going for starvation या फिर hunger strike पे जा रहे हैं या कुछ भी problem हो रहा है हमारी body के साथ, there is the brain and RBCs. These both, especially the brain, is something that they actually need a constant amount of glucose in their body. For that purpose, अब वहाँ क्या होगा कि चाहे आपका ब्लड ग्लूकोज 20 पे क्यों ना चला जाए, इट विल ऑलवेज रिक्वायर ब्लड ग्लूकोज लेवल अ कॉन्स्टेंट अमाउंट पे, उसको एक रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए होगी. दैट इज़ अ वैल्यू. फॉर दैट आवर बॉडी ट्राइज आर बेस्ट कि हमारे पास जो ग्लूकोज की फॉर एग्जाम्पल रेंज रहे वो इसके बीच में रहे. नाउ अज्यूमिंग द सिनेरियो हियर कि फॉर एग्जाम्पल यू हैड अ वेरी नाइस लंच टुडे, actually wants to go on trip and with his friends, और वो जंगल साइड पे जा रहा था, तो he decided कि why not before going into a jungle side trip the boys fed themselves with a very halwa puri का proper नाश्ता. After eating a lot of good nashta, pizzas, pastas, everything possible, because they were going into a jungle side, they do not know when and how they're going to eat later on. So how actually the glucose we are going to take everything. Now for example, anything that the boy actually have eaten had different things. For example, carbohydrate थे उसमें, protein थे, and उसमें fatty acids like lipids थे, ठीक है, lipids थे. अब for example, of course we all know कि अब हमारे these all three things will go into the digestive system. First in the mouth, amylase will act, putting the carbohydrates, putting down them into the smaller molecules. Then of course stomach में something will act on them, as a result of which I'm not going into the details of that right now. But intestine में what will happen, that intestine में there will be, when I'm talking about only carbohydrates right now, there will be a point when they will be converted into the most basic materials, that would be your glucose, galactose and fructose. Right now I'm talking about glucose, but galactose and fructose, they are monosaccharides. Proteins पे they will be peptides like amino acids की form में, or they will be dipeptides. Now the beautiful thing you have to understand here, that there is, whenever for example we have an intestinal wall से blood vessel में कोई भी चीज़ जब जा रही होती है, तो glucose is a molecule that should be like, the carbohydrate is the molecule that should be in the simplest form, that is the monosaccharides form, to be absorbed in the blood vessels. हालांकि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स टुगेदर लाइक द डाइसैकेराइड्स जो होते हैं, दे कैन नॉट बी इवन एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वेसल्स. ऑल्दो अगर मैं पेप्टाइड्स की बात करूँ तो अमाइनो एसिड इनटू अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा, दे कैन ईजिली बी एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड वेसल्स. ठीक है, सो फॉर द ग्लूकोज थिंगी वी एक्चुअली नीड दैट द बेसिक हमारे पास ग्लूकोज होना चाहिए. अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल फरहान, या आई एम मेकिंग अ वेरी नाइस ग्राफ हियर एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट.
it's actually glucose against time. ठीक है, let's assume here, what we are gonna assume here that यहाँ पे ना सबसे प्यारी चीज़ ये होनी है कि यहाँ हमारे पास एक ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज हमें पता है 70 to 100 होती है. अगर हम इसका एक रेंज निकाल लें तो फॉर एग्जांपल फरहान का जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है रेंज में मेंटेन्ड है वो 90 पे है या 80 पे है मिलीग्राम पर DL पे. यहाँ पे एक कांस्टेंट ग्लूकोज चल रहा था उसका. अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये सिस्टम चला कि उसने बहुत सारा खाना खाया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास क्या हुआ कि अ लॉट ऑफ ग्लूकोज ही हैव टेकन, जिसकी वजह से सारा अब इंटेस्टाइन से इनटू द ब्लड वेसल्स आ गया एंड अचानक उसके पास क्या हो गया, दिस ग्राफ विल गो अप. नाउ द ग्लूकोज आई एम टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट द टाइम थिंग, it actually takes about 45 minutes for the things to be absorbed into the GIT. Now the time can vary because depending on the contents what the person have already eaten. And this upper thing, ये कितना ऊपर जाएगा, कितना उसने ग्लूकोज आएगा, ये डिपेंड करता है मेनली ऑन द डाइट एंड द कंटेंट पे कि कितना उसने खाया है, कितना कंटेंट खाया है, क्या कंटेंट्स खाए हैं. दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दैट. बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ये जो हाईएस्ट पीक भी होनी चाहिए वो 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड उसका आगे मैं रीज़न बताऊंगी इन द डायबिटीज़ वीडियो. ठीक है, बिकॉज 180 इज एक्चुअली 180 मिलीग्राम पर DL इज एक्चुअली अ थ्रेशोल्ड फॉर रीनल थ्रेशोल्ड होता है. 180 मिलीग्राम पर DL से अगर ग्लूकोज इन द बॉडी ज़्यादा हो जाएगा तो देयर विल बी ग्लाइकोस्यूरिया. और नॉर्मल बॉडी में क्या होता है दैट किडनी एब्जॉर्ब्स एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो फिल्टर हो रहा होता है किडनी से. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 180 से अगर थोड़ा भी ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, द किडनी व्हाट इट विल डू, उसके ट्यूब्यूल्स में देयर विल बी नो सच कैपेसिटी टू रीअब्जॉर्ब ऑल ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी एंड एज अ रिजल्ट द ग्लूकोज विल बी फिल्टर्ड इनटू द यूरिन. एंड हमें यूरिन अगर डिपस्टिक करेंगे और यूरिन टेस्ट करेंगे तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ ग्लूकोज डिटेक्टेड इन दैम. So that's a kind of a, not a hallmark I can say, but that a kind of a not even the diagnostic test, but एक हम टेस्ट रैंडम कर रहे होते हैं इन डायबिटीज़ जस्ट एक क्विक टेस्ट के लिए. ठीक है, बट इट्स नॉट ऑथेंटिक ऑनेस्टली. अब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स गेट बैक टू फरहान राइट नाउ. सो फरहान ने उसका नॉर्मल ग्लूकोज लेवल यहाँ चल रहा था एंड बेसिकली ये ऊपर गया ये कर्व ऊपर गया. अब this is the homeostasis, right? But is this the homeostasis? No. That means whenever the glucose concentration is going up in the blood vessels, our body system is being activated that bhai sahab there is a big problem going on and homeostasis is shattered here. अब क्या करेगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉडी ऐसा काम करेगी कि homeostasis लाने के लिए the graph will actually go down. That means something is working here that will actually cause this graph to actually come down. ठीक है, अब क्या होगा, द थिंग विच इज वर्किंग हियर दैट मीन्स इज अ अनसंग हीरो. यहाँ पे समथिंग इज वर्किंग एंड वी हैव टू डिस्कस दैट. एनीथिंग जो कि ये काम करवा रही है. द बेसिक थिंग विच वर्क्स हियर इज एक्चुअली द हार्मोन एंड दैट इज योर इंसुलिन हार्मोन. This insulin hormone is actually bringing the hypoglycemia here. It is causing the hypoglycemia, right? So that is why it is known as hypoglycemic hormone. ठीक है, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट. अब हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन का काम क्या है कि इट विल डू एनीथिंग इन इट्स पावर टू एक्चुअली ब्रिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन. वो काम करता रह रहा है. विच टाइम द ब्लड ग्लूकोज इज कमिंग डाउन, दैट मीन्स ये ग्राफ नीचे जा सकता है क्योंकि इंसुलिन काम कर रहा है. बट द मोमेंट ये 90 से नीचे जाएगा दैट मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया का स्टेट आएगा, बॉडी का टन फिर से स्टार्ट हो जाएगा. द अलार्म सिस्टम विल अगेन स्टार्ट एंड होमोस्टेसिस विल डिसाइड कि भाई अगेन दिस इज समथिंग गेटिंग आउट ऑफ हैंड. वी वांट टू हैव दिस 90 की वैल्यू एंड समथिंग इज इंसुलिन इज वर्किंग मोर. सो देन दैट मीन्स दैट देयर विल बी समथिंग दैट्स वर्किंग हियर, right? Something is working here to prevent this graph to go down and to bring that graph back here. That means कि एक constant, अब यहाँ पे suppose यहाँ तक नीचे आ गया खाना, अब फरहान ने यहाँ पे खाना फिर से नहीं खाया, but still the blood glucose level will be here. That means the whole point of graph is that there's somebody again who is working and that is your glucagon. Now there is a glucagon you can remember as glucagon. Whenever the glucose is going out, glucose is gone, then glucagon is jogging here कि भाई अब उठ के ना थोड़ा काम कर लेना चाहिए मैंने. But this is not only the hero which is working here. There are set of heroes working here. Main is glucagon.
certain kind of other hormones, that is epinephrine, cortisol, epinephrine also known as adrenaline, ACTH, growth hormone and thyroxine. And I'm going to tell you in the detail कि ये कैसे कैसे काम करवाते हैं और इनका क्या काम होता है. So basically now what happens is that means that the graph is not coming down. That means there are something which is working on here and the homeostasis is then maintained. अब फरहान खाना खाए या ना खाए, this have nothing to do with it. Now we are gonna understand, because the homeostasis is all about these two people, these two group of people. That actually means that we need to understand how they both work and how they actually regulate. What are the things that basically insulin ऐसा करेगा क्या कि ये ग्राफ इतना ज़्यादा ग्लूकोज था in the blood, how it's gonna come down. And glucagon, what it's gonna do some magic कि फरहान खाना खाए या ना खाए, still there will be a constant supply of glucose. कहाँ से आ रहा है? तो first of all, we're going to study the insulin here and a quick review about it. Insulin is actually a double polypeptide की एक chain होती है हमारे पास, ठीक है. इंसुलिन का एक स्ट्रक्चर ऐसे होता है हमारे पास, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है. प्रो इंसुलिन होता है हमारे पास पहले, फिर वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो गोल्जी एपेटस में आता है, वहाँ पे उसकी कटिंग होती है, इट्स अगेन कन्वर्टेड इनटू प्रो इंसुलिन. क्योंकि एक पोर्शन आपका कट हो जाता है तो उसका प्री हटा के प्रो इंसुलिन उसको बना देते हैं. फिर हमारे पास वो जब गोल्जी एपेटस में आता है तो हमारे पास दो चेन्स होती हैं, इनके बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, एक इंट्रामोलिक्यूलर, एक चेन के विद इन एक डाइसल्फाइड का बॉन्ड होता है, एंड यहाँ पे कट आ जाता है. तो ये जो पोर्शन होता है दैट इज गोइंग इनटू दिस पोर्शन, एंड ये एक चेन बन जाएगी विद टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड एक चेन के विद इन है. दैट्स इट. दिस इज नोन एज अ सी पेप्टाइड थिंगी, एंड दिस इज एक्चुअली द इंसुलिन थिंग. What happens right now is that, for example, how it's going to be released. हमारे पास जो स्टिमुलस होता है, फरहान have eaten a lot of food right now, ठीक है. So for example, we have our carbohydrate, we have protein, we have fatty acids, all of these things, especially the amino acids, arginine when I'm talking about it, and there will be some kind of things जो GIP कहते हैं हम उनको और GLP कहते हैं. They are some kind of most important incretins. अगर मैं बात करूँ, that will be secreted from the luminal side, ब्रश बॉर्डर साइड ऑफ द इंटेस्टाइन. जब ब्रश बॉर्डर ये देख रहा होता है कि लॉट ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट हैव कम टू मी, दैट इज वाई वो उसको रिलीज करवाते हैं इनक्रेटिन्स को, सो दैट व्हेन दे गो टू द बीटा पेनक्रेटिक सेल्स विद द ग्लूकोज, तो वो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट करवाते हैं. शो नाउ दिस वाज द स्ट्रक्चर व्हिच आई एम गोना ड्रॉ. ये स्ट्रक्चर होता है. लेट्स डू दैट हियर, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दैट फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर अ पेनक्रेटिक सेल, ठीक है. बीटा पेनक्रेटिक सेल्स है यहाँ पे हमारे पास. बीटा पेनक्रेटिक सेल्स और लिवर, इन दोनों का एक खास सीन है. हमारे पास टोटल ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं 5, ठीक है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल ऑफ दैट, बट ग्लूट रिसेप्टर्स 5 टोटल में से जो ग्लूट 4 होता है, दैट इज द ओनली वन. ग्लूट 4 रिसेप्टर क्या होता है? दिस इज एक्चुअली रिसेप्टर जो कि हर सेल पे होता है प्रेजेंट, ग्लूट रिसेप्टर जो कि ग्लूकोज को एक्सेस दे रहा होता है. ग्लूट 4 इज द ओनली रिसेप्टर जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है. दैट मीन्स कि जिस टिश्यूज़ पे, अनलकी टिश्यूज़ पे ग्लूट 4 होगा, उन पे ग्लूकोज तभी एंटर होगा व्हेन इंसुलिन विल ऑर्डर देम, अदरवाइज नहीं. दैट एक्चुअली ऑल्सो मीन्स दैट अदर सेल्स जो कि लकी सेल्स हैं, दे डू नॉट हैव आर ग्लूकोज, दैट डू नॉट हैव आर ग्लूट 4. उनके पास ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3 होगा या ग्लूट 5 होगा. वो इंसुलिन हो या ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूँ जिसमें इंसुलिन खत्म हो जाता है, स्टिल ग्लूकोज का अपटेक होगा, ठीक है. तो हमारे पास जो एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्लूट होते हैं, दैट इज बेसिकली योर ग्लूट 2, ठीक है. ग्लूट 2 इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन लिवर एंड पेनक्रियास के बीटा सेल्स पे. ग्लूट 2 की 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बात, दो ग्लूट 2 है तो 2 से याद रखनी है कि 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, लिवर और पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स पे. और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज़ बाई डायरेक्शनल. 2 से याद रखना है दोनों तरफ. लेट मी टेल यू दिस इज फॉर एग्जाम्पल योर ग्लूट 2, ठीक है. ये ग्लूट 2 है हमारा. ग्लूट 2 की ये बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इट इज ग्लूट 2 एंड इट इज अलाउिंग ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, सपोज दिस इज ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इफ द ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कैन कम इनसाइड, इट कैन ऑल्सो गो आउटसाइड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. दैट मीन्स कि कुछ ऐसा होना चाहिए इन टू द सेल जो कि मैं इसको ट्रैप करके रखूँ. फॉर दैट वी हैव ए एंजाइम विच इज नोन एज हेक्सोकाइनेज, ठीक है. हेक्सोकाइनेज इज अ एंजाइम. अब हेक्सोकाइनेज इज ब्यूटीफुल एंजाइम, क्यों? क्योंकि एवरी सेल इन द बॉडी हैव हेक्सोकाइनेज, बट लिवर इज द ओनली वन जिसके पास हेक्सोकाइनेज का दूसरा नाम होता है ग्लूकोकाइनेज. एंड आई टेल यू द रीजन एट लेटर ऑन क्यों,
कंफ्यूज नहीं होना इस पर, ठीक है। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, काइनेज का जब भी वर्ड आता है दैट मीन्स कि अगला जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक फॉस्फेट ऐड करवाएगा, वो काइनेज का मतलब ये होता है। तो बाय यूजिंग एटीपी इट एक्चुअली कन्वर्ट्स योर ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज फॉस्फेट। अब ये ट्रैप हो गया, अब दिस कैन नॉट गो आउटसाइड, ठीक है। तो ये हार्मोन ये वाला काम करता है कि ट्रैपिंग का काम कर दिया। एट दी एंड कहने का मकसद ये है, एट दी एंड हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का पाथवे यहाँ पे होगा, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल अगेन, एंड एट दी एंड हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा विच इज़ योर एटीपी, ठीक है। अ लॉट ऑफ एटीपी विल बी देयर। नाउ देयर विल बी सम काइंड ऑफ स्पेशल सेल्स जो कि हमारे पास होंगे। एटीपी सेंसिटिव या एनर्जी सेंसिटिव पोटेशियम लीकी चैनल्स होंगे हमारे पास। लीकी चैनल्स क्या करवाते हैं हमारे पास, वो पोटेशियम, सी वी नो दैट सेल इज अ बैग ऑफ पोटेशियम, राइट। सो पोटेशियम बाहर आता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड मेंटेन होती है हमारे पास इनर वाली जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव मेंटेन हो रही होती है, राइट, क्योंकि पॉजिटिव इज कमिंग आउट। एटीपी क्या करेगा, एटीपी आके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, और इसको ब्लॉक कर देगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो पोटेशियम कमिंग आउट, दैट मीन्स देयर विल बी मोर पॉजिटिविटी इनसाइड। दैट मीन्स जो नेगेटिव पोटेंशियल था माइनस फॉर एग्जांपल 90 या माइनस 70 का, वो माइनस 40 पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद वी हैव सर्टन काइंड ऑफ कैल्शियम चैनल्स हियर, लेट्स मेक देम हियर। हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम चैनल्स वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं। ये वोल्टेज जैसे ही चेंज होगा दीज विल ओपन, as these will open there will be inflow of calcium and as a result क्या होगा कि we all know, I don't know you guys know this or not, but this is very, I think, common sense, a very good doctor will know this thing for sure, that इंसुलिन हमेशा एक प्री फॉर्म्ड फॉर्म में होता है, विजाइकल्स फॉर्म में होता है। ये इंसुलिन की विजाइकल्स है, ठीक है, ये प्री फॉर्म्ड में होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। नॉट ओनली द ग्लूकोज इज गोना गो टू द न्यूक्लियस कि आप और इंसुलिन बनाओ, बिकॉज दैट इज गोना टेक 2 आवर्स एटलीस्ट, जब तक वो राइबोसोम्स करेंगे, अपना mRNA बनाएंगे, काम करेंगे, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी तक जाएंगे, सी पेप्टाइड को काटेंगे, प्री सब कुछ करेंगे। बट जो हमारे प्री फॉर्म्ड विजाइकल्स होंगे जिनके कंटेंट्स में इंसुलिन होगा 90%, कटवट सब किया हुआ है इसको, सी पेप्टाइड होगा इन इक्वल अमाउंट, और फिर हमारे पास इसमें अमाइलिन भी होगा, और हमारे पास होगा इसके इंसुलिन, प्रो इंसुलिन भी होगा, सम फ्यू परसेंट, 4 to 5%। ये हमारे कंटेंट होंगे एंड दे विल बी रिलीज्ड आउट, ठीक है। इट विल टेक 15 minutes फॉर द प्री फॉर्म्ड, 15 minutes फॉर द प्री फॉर्म्ड टू कम आउट इन टू द ब्लड सेल्स एंड एटलीस्ट 2 hours फॉर एक्चुअली टू कम दैम, बाकी DNA को बनाने में लगेगा टाइम। अब आ गया हमारे पास इंसुलिन बाहर। नाउ दिस इज द ब्यूटिफुल थिंग, इंसुलिन आया, ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ हो गई, इंसुलिन तो आ गया। दैट मीन्स इंसुलिन आ गया तो अब ये चीज़ आएगी, डाउनफॉल ऑफ द ग्लूकोज। कैसे आएगी डाउनफॉल ऑफ द, जो ये ग्राफ है ना, दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल बाय द ग्लूकोज, बाय द इंसुलिन, कि ठीक है वो काम करवा रहा है। बट कुछ मैंने कहा कि देयर आर सेल्स विच हैव ग्लूट 1 2 3 5 विच आर नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट, राइट। So they take up the glucose. For example, brain RBCs, they do not have kidneys, they do not have placenta. If somebody is pregnant, fetus, placental cells, they do not have GLUT4 cells because insulin अगर माफिया आके नहीं बोलेगा तो फिर नहीं उठाएंगे हम ग्लूकोज, नहीं ना, हम तो उठाएंगे। That's it. तो अब इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन will actually work on 3 people. That's it. Liver, adipose tissue and muscle. इंसुलिन उन पे काम कर सकता है जिसके पास हो GLUT4। दैट मीन्स इन तीनों के पास GLUT4 है नहीं। नाउ द ट्विस्ट कम्स, इंसुलिन विल वर्क ऑन एडिपोसाइट्स, दैट इज द फैट्स, एंड द मसल्स थ्रू GLUT4। बट लिवर इज द ओनली वन एन एक्सेप्शन हु हैव GLUT2। दैट मीन्स इंसुलिन इंडिपेंडेंट है ग्लूकोज अपटेक, तो लिवर पे फिर कैसे काम करेगा, आई एम गोना टेल यू राइट नाउ, 2 seconds में। पहले एडिपोज का कर लें और मसल्स का कर लेते हैं। इंसुलिन क्या करेगा, अब इंसुलिन का टारगेट यह है कि कुछ भी कर लो भाई, मुझे ग्लूकोज कम चाहिए बॉडी में। तो फॉर दैट पर्पज व्हाट इट विल डू, इट विल टेल द एडिपोज सेल्स कि प्लीज टेक अप द ग्लूकोज एंड डू मोर ग्लाइकोलिसिस,
ठीक है, ठीक है. It will also go and tell the adipose cells कि take the glucose and convert them into fatty acids and store them within your cells. So fatty acid synthesis हमारे पास होगी, ठीक है. There will be certain enzymes like lipases होगा, उसको inhibit करेगा. Lipases क्या करवाता है? लिपिड्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं. लिपिड ब्रेक डाउन होंगे तो फैटी एसिड्स बनेंगे. फैटी एसिड्स बनेंगे तो वो लिवर के पास जाएंगे और वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेंगे फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नए सिरे से ग्लूकोज बनाना. अभी ग्लूकोज चाहिए, नहीं चाहिए, दैट मीन्स मैं इस पाथवे को लाइपेसिस को इनहिबिट करेगा, ठीक है. मसल के पास इंसुलिन विल गो एंड टेल प्लीज टेक द ग्लूकोज फॉर ग्लाइकोलिसिस, प्लीज कॉज इट के अमाइनो एसिड ले लो, प्रोटीन बना लो और ग्लाइकोजन बना लो अपने पास. स्टोरेज फॉर्म होता है. बट ये नालायक ग्लाइकोजन जब ज़रूरत पड़ेगी तो मसल का ग्लाइकोजन कभी ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करने में काम नहीं आता. ये सारे काम कर लिए इसने, अभी काम करेगा लिवर पे. कैसे काम करेगा लिवर पे? ग्लूकोज तो ये इनकी मर्जी पे जा रहे थे. GLUT2 इज इंडिपेंडेंट. लिवर में ग्लूकोज तो इसकी मर्जी से जा रहा होगा. बट मैंने कहा ग्लूकोज जाने के बाद जो एंजाइम काम करता है विच इज ग्लूकोकाइनेज, दैट इज ओनली इन द लिवर, उस पर देयर आर सर्टन अदर एंजाइम जैसे ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है, ग्लाइकोजन बनाने का जो एंजाइम है, उसको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देगा हमारा लिवर, हमारा इंसुलिन, जिसकी वजह से पॉजिटिव फीडबैक की खातिर मोर सबस्ट्रेट ग्लूकोज को वो अट्रैक्ट करेगा और मोर ग्लूकोज आता रहेगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच मोर ग्लाइकोलिसिस होगी, मोर ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगी स्टोर होने के लिए, लिपिड्स फॉर्म होंगे कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में, ठीक है, VLDL बनेंगे हमारे पास, और प्रोटीन सिंथेसिस तो हमारे पास मसल से करवाते हैं, और प्रोटीन्स को हम यहाँ पे और ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप कर देंगे, ठीक है, स्टॉप कर देंगे. दैट्स इट. ये हो गया. अब ये प्रोसेस चलता रहेगा. इंसुलिन आता जाएगा नीचे, ग्लूकोज आता जाएगा नीचे, फिर आएगा हमारे पास. सो नाउ बेसिकली सिंस वी हैव डन ऑल ऑफ द थिंग्स अबाउट इंसुलिन, लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट कि यहाँ पे अब इंसुलिन अगर काम करता गया ऐसी स्पीड से, दैट मीन्स द ब्लड ग्लूकोज इज गोना कम डाउन. टू प्रिवेंट दैट, जैसे ही एक इंस्टेंट लेवल ऑफ 60 से 70 से कम हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया का स्टिमुलाई विल गो टूवर्ड्स ग्लूकागॉन रिलीज के लिए. एंड ग्लूकागॉन इज अगेन रिलीज फ्रॉम व्हाट? लेट्स फॉर्म इट हियर. ग्लूकागॉन इज एक्चुअली रिलीज फ्रॉम, हमारे पास पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस होते हैं, 1 to 2 पूरे पेनक्रियाज में. आई थिंक एवरीबडी राइट नाउ जो ये वीडियो देख रहा होगा शुड बी नोइंग दिस फैक्ट कि पेनक्रियाज हैव 2 functions, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडोक्राइन फंक्शंस, ठीक है, एक्सोक्राइन की बात नहीं कर रही. आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या होते हैं? दे आर काइंड ऑफ आइलेट. पानी के बीचों बीच आपके पास आइलेट्स होते हैं. सिर्फ 1 to 2% आपके पास पूरे पेनक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ले रहे होते हैं. आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कैसे होता है एक बना के दिखाती हूँ. वी हैव बीटा सेल्स दैट इज ब्यूटिफुल. ब्यूटी इज ऑलवेज विद इन द सेंटर, ठीक है. बीटा सेल्स हमारे पास होते हैं बीच में, इन द सेंटर. दे आर लाइंड बाय अल्फा मेल्स, अल्फा सेल्स. हमेशा ब्यूटी सराउंडेड बाय मेल्स एंड अल्फा मेल्स तो माशाल्लाह. आफ्टर दैट we have some kind of special cells which are called as delta cells. They are like dogs and they are at the periphery, बहुत कोने कोने में, ठीक है. तो beauty have to be in the center and they are around this. So glucagon is actually a single polypeptide chain molecule, ठीक है, 29 amino acid से बना हुआ होता है. बहुत basic information है. And it is an antagonist of insulin, against उसके काम करता है. When I'm talking about insulin that is bringing back the graph down and it's causing hypoglycemia, so it's known as hypoglycemic hormone, can I call all of these hormones as hyperglycemic hormones? Of course I can. So these all hormones are actually known as hyperglycemic hormones. Why? Because they cause hyperglycemia. अगर इनकी किसी भी चीज़ में एक्सेस हो जाएगी तो वो hyperglycemia ही करवाएगा. अब for example hypoglycemia का stimulus आया, glucagon stimulus will go into the alpha cells. Alpha cells will secrete your glucagon. Not going into the detail how it's released. Glucagon basically comes out and again glucagon works into these three things पे again glucagon will work. कैसे? It will work on liver. बेसिक पूरा काम जो है ना, अगर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए, ब्लड ग्लूकोज मेंटेनेंस के लिए मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज डन बाय लिवर, ठीक है. ये सिर्फ कुछ ये मसल तो एक नाम के लिए होती है. लिवर क्या करेगा? व्हेन ग्लूकागॉन विल गो फॉर द लिवर,
वो हर प्रोसेस लिवर का एक्टिवेट कर देगा उस एंजाइम को जो कि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाए. फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस बढ़ाता है, कम करता है, ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप कर देगा. वो सारे हार्मोन्स जो ग्लाइकोलिसिस के पाथवेज पे होते हैं जैसे कि ग्लूकोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस, उसको इनहिबिट कर देगा. ग्लाइकोजन का क्या करेगा? ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फॉर्म जो हमने बचा के रखी थी जब फरहान ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था. वो ग्लाइकोजिनोलिसिस करवाएगा. ग्लाइकोजन सिंथेज हार्मोन जो था हमारे उसे इनहिबिट करके ग्लाइकोजिनोलिसिस के जितने भी हार्मोन्स होंगे उन सबको एक्टिवेट कर देगा, तोड़वाएगा उनको, ताकि ब्लड ग्लूकोज हमारे पास बढ़ जाए. यहाँ हमारे पास लिपिड्स भी थे, यहाँ हमारे पास प्रोटीन्स भी थे. ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज नया बनवाएगा. कैसे? इट विल वर्क ऑन एडिपोसाइट्स. एडिपोसाइट्स को बोलेगा कि जितने भी आपके पास अभी हमने आपके पास किराए पे रखवाए थे, ग्लूकोज आपको बेच दिया था हमने, आपने उसका लिपिड बना के लाइपोजेनेसिस करके रखी थी इन द फैट स्टेट पे, ठीक है. आप उस लिपिड को तोड़ो, कन्वर्ट देम इनटू फैटी एसिड्स एंड गिव मी दैट, सो दैट वो फैटी एसिड जाएगा लिवर के पास, और लिवर आपके पास वो फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स को ब्लड से निकाल के यूज करता है टू मेक ग्लूकोज. दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम दी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज. नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स होंगे, और वो कहाँ से आएंगे? एडिपोज से तोड़ के बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोगॉन. मसल. नाउ मसल के पास भी ग्लाइकोजन होती है, बट क्या ग्लाइकोजन विल बी रिलीज्ड एंड विल बी ग्लाइकोजिनोलिसिस? होगी नहीं. ग्लूकोगॉन के पास वो बेसिकली दैट ग्लूकोगॉन डजंट वर्क्स. मसल के पास वो हार्मोन ही नहीं है जिसपे हमारे पास आई थिंक उसका नाम होता है, आई टेल यू द नेम इन द एंड, बट मसल डू नॉट हैव दैट एंजाइम जिसपे आपके ग्लूकोगॉन विल वर्क एंड एज अ रिजल्ट ग्लाइकोजिनोलिसिस होगी. तो ग्लाइकोजन ऐसे ही वहाँ पे स्टोर रहेगा. एपिनेफ्रीन जब हमारे पास रिलीज होगा, एपिनेफ्रीन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन. एपिनेफ्रीन इज अ स्ट्रेस हार्मोन. मैंने कहा था ना स्ट्रेस हार्मोन आपके पास होते हैं, फाइट और फ्लाइट कंडीशन के हार्मोन्स. एपिनेफ्रीन विल बी रिलीज इनटू द स्ट्रेस कंडीशंस. जैसे इन्फेक्शन हो गया, कोई स्ट्रेस आ गया, हाइपोग्लाइसीमिया इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस कंडीशन. एपिनेफ्रीन इज द ओनली हार्मोन दैट कैन वर्क ऑन मसल, और उसके पास अथॉरिटी होती है कि मसल में जो हमारे पास एक एंजाइम है, I'll tell you the name in very short period, I forgot about it. उस एंजाइम पे यस मसल फॉस्फोराइलेज कहते हैं उसको. वो फॉस्फोराइलेज, मसल फॉस्फोराइलेज के नाम से कोई आता है, उस पे एपिनेफ्रीन बेसिकली कैन वर्क परफेक्टली, और वो उसे एक्टिवेट करा के ग्लाइकोजिनोलिसिस करवा सकते हैं. दैट मीन्स द ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द मसल कैन ओनली बी यूज व्हेन एपिनेफ्रीन ऑन द स्ट्रेस कंडीशन है. गुड हो गया. एडिपोसाइट्स पे भी एपिनेफ्रीन काम करेगी और लिवर पे भी काम करेगी. कॉर्टिसोल भी यही काम करेगा. अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या दीज हार्मोन्स आर रिलीज एवरी टाइम? नाउ द थिंग इज ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रीन आर ऑलवेज द हार्मोन्स ऑफ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस. फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म हाइपोग्लाइसीमिया हो गया किसी को, तो हमारे पास ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन दोनों रिलीज होंगे. एब्रप्ट फॉल आ गया क्योंकि ये इमीडिएट इफेक्ट शो करते हैं. दे डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क. जब हमारे पास एक सडन ड्रॉप इन हाइपोग्लाइसीमिया आएगा, फॉर एग्जाम्पल एक डायबिटिक पेशेंट है, उसकी ग्लूकोज आई गया 756 पे या 356 पे, कोई भी इमेजिन कर लो, 200 से तो ज़्यादा ही होगी. हमने उसको इंसुलिन का डोज था, वी हैव गिवन हिम अ लॉट ऑफ लाइक 8 यूनिट्स इंसुलिन देना था, बट एक हाउस ऑफिसर से गलती हो गई एंड उसने 80 यूनिट्स दे दिया. ठीक है, इंटर्न ने 80 यूनिट्स दे दिए, सडन ड्रॉप.